Okay. Before proceeding with the lecture, I'll just give you a quick review and quick revision of what we have learned in last lecture. We went through general pharmacology, in which I introduced you to the pharmacokinetics with absorption, distribution, metabolism and excretion. उसमें फिर हम लोग ने देखा कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन से हैं. We went through oral route of administration. In that, we saw drug, drug absorption and everything. Then we saw about the properties of drugs, that is solubility, ionization देखा हम लोग ने. फिर उसका molecular size देखा. मैंने बताया कि molecular size के ऊपर depend करता है the blood is going, how the drug is going to be absorbed in your bloodstream. Then we got about five psychological physiological factors, that is gastric pH के ऊपर depend करता है. Then blood flow के ऊपर depend करता है, and then also on the surface area of your body. Then also it depends on the presence of food. Then we learned about drug distribution. Drug distribution में हम लोग ने देखा कि कैसे हमारा ड्रग फ्रॉम योर बॉडी ब्लड स्ट्रीम टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाता है. फिर बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन्स देखा हम लोग ने. देन वी वेंट थ्रू ड्रग मेटाबॉलिज्म, जहाँ पर हम लोग ने देखा कि लिवर performs as a major organ for the drug metabolism. We came through phase 1 and phase 2 of metabolism. Then we learned about drug elimination, in which the drug is being removed from your body via a number of routes. Then after that, we learned about all the routes of administration, जैसे कि oral हो गया, buccal हो गया, rectal हो गया. Then we have intravenous, फिर inhalation drugs है, where we have subcutaneous injections. Then we have topical patches जो हम लोग यूज कर सकते हैं, transdermal है. Then vaginal route of administration है. ये सब हम लोग ने देखा था in our last lecture. Now in this lecture, we will learn the second part of general pharmacology, that is basic principles of drug action. इसमें we will look out for drug receptor interaction, a dose response relationship, drug selectivity, agonist and antagonist, pharmacokinetics, pharmacodynamics, therapeutic window, side effects and adverse reactions. As in we move for the further topic, हमको बार बार वही वर्ड्स या वही सेंटेंसेस बार बार सुनने को मिलेंगे या पढ़ने को मिलेंगे. वही आपको रिपीट करना है. जस्ट इन केस you have any doubt, you can refer to the previous lectures of mine. Then we have drug interactions. The third topic included is adverse reactions to the drugs. उसमें we have two types. We have various types in there. उनका common adverse drug reactions देखेंगे हम लोग. उनको मैनेज कैसे करेंगे और ADRs, that is adverse reactions को prevent कैसे करेंगे वो देखेंगे. Then we have factors modifying drug responses. Then starting with the topic, that is basic principles of drug action. Before starting with the topic, I'll just let you know the basic words or basic words that I'll use in the lecture today. First of all, I'll tell you what is drug. आपको पता है ड्रग क्या है? मेडिसिन है. लेकिन इन सिंपल टर्म्स, जो भी हम लोग खा रहे हैं, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस दैट इज अदर देन फूड, जो भी खाना, जो भी हम लोग कुछ भी खा रहे हैं अदर देन फूड इज कॉल्ड एज ड्रग. Okay, and now from further lecture you will often listen receptor, protein binding, binding site, ये सारे words आपको बहुत सारे बार सुनने को मिलेंगे. So I'll explain them to you before starting with the lecture. What is receptor? Receptor एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है which is located on the surface or within a cell that binds to a chemical messenger, that is drug. मतलब एक रिसेप्टर है. रिसेप्टर जो है, इट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो आपके सेल्स को जाके बाइंड करेगा. और सेल्स को कौन बाइंड करेगा? तो आपका ड्रग.
दैट इज द केमिकल मैसेंजर। ओके, अब रिसेप्टर्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे आपके ड्रग का इफेक्ट। ओके, अब रिसेप्टर्स बाइंड होंगे कहाँ पर, तो इट विल गो टू बाइंडिंग साइट्स। अब ये बाइंडिंग साइट्स क्या है, तो बाइंडिंग साइट्स आर द स्पेसिफिक रीजन ऑन द रिसेप्टर, ओके, व्हेन अ मॉलिक्यूल सच एज ड्रग बाइंड्स। अब ये बाइंडिंग साइट एक ऐसी जगह है ऑन द रिसेप्टर इटसेल्फ where the drug comes and binds to it. Then we have जो बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल है to the binding site can induce changes in receptors activation. अगर वो अच्छे से बाइंड नहीं हुआ, आपका केमिकल मैसेंजर आपके बाइंडिंग साइट के रिसेप्टर पे अच्छे से बाइंड नहीं हुआ, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके बाइंडिंग में, सो इट विल कॉज वेरियस रिएक्शंस। ओके, देन वी हैव अ टर्म कॉल्ड एज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि as it's in the word itself, half life, that is आधा जीवन, which comes to as time taken for the concentration of the drug in the blood to reduce to its half of the concentration. मतलब अगर आपने 100 mg का टैबलेट लिया है तो उसको 50% होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज referred to as half life of that drug. Okay, half life is very useful for the study of the drugs. Then we have a term called therapeutic window. थेरेपेटिक विंडो का मतलब ऐसा होता है कि जो डोज हम लोग ले रहे हैं, दैट इज रेंज ऑफ ड्रग डोज दैट प्रोड्यूसेस द थेरेपेटिक इफेक्ट, ओके, विद इन द विदाउट कॉजिंग एनी एडवर्स इफेक्ट इज कॉल्ड एज थेरेपेटिक विंडो। मतलब एक प्रॉपर डोज रेजिमेंट जो हम लोग देंगे, वो ड्रग आपको थेरेपेटिक इफेक्ट देगा विदाउट क्रॉसिंग योर टॉक्सिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज थेरेपेटिक विंडो। Then we have bioavailability, that is proportion of a drug that reduces the systemic circulation in the active form after administration. मतलब जब ड्रग आपने एडमिनिस्ट्रेट कर लिया है, ड्रग हैज वेंट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, तो वो प्रपोर्शन ऑफ ड्रग जो रेड्यूस होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में टू गिव यू अ थेरेपेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड एज bioavailability. Okay, these were the terms which I'll use in the further topics. Then we have principles of drug action. अब principles of drug action क्या है, हम लोग ने पहले देखा कि क्या देखा, सॉरी, वी वेंट थ्रू दी एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम लोग ने देख लिया। अब एक ड्रग का प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे एक्ट करता है, दैट वी विल सी फर्दर। Now we have drug receptor interaction. As I said, receptor हम लोग बार बार यूज करेंगे। Receptors, drug often act by binding to specific receptors on the surface or inside cells. These receptors are typically proteins that can initiate a response within the cell when activated by a drug. मतलब क्या कि receptors जो है वो typically, like mostly they are the proteins which initiate a response. वो लोग एक response initiate करेंगे जब आपका drug उसको आके bind करेगा। ओके, these are receptors. अब receptors में भी affinity है और efficacy है। अब affinity क्या है, affinity जैसे मैंने पहले बोला था कि आपका ड्रग कितना स्ट्रॉन्ग है उस रिसेप्टर को बाइंड होने के लिए, उस रिसेप्टर को बाइंड होके कितना ज्यादा वो इंटरैक्ट करेगा ड्रग के साथ is called as affinity. That is, affinity refers to a strength of the interaction between a drug and its receptor. While efficacy refers to the ability of the drug receptor complex to produce a biological effect. अब affinity और efficacy ये दोनों अलग अलग टर्म है, जस्ट रिमेंबर दैट। affinity मतलब उसका स्ट्रेंथ है, efficacy मतलब बाइंड होने के बाद वो कितना ज्यादा, लाइक कितना डोज के इसमें बायोलॉजिकल इफेक्ट देगा। affinity is the strength, efficacy is the effect. Remember, efficacy is effect. Okay, then we have dose response relationship. Dose क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोज यानी कि द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, आप कितना ड्रग ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डोज। फिर उसका रिस्पॉन्स,
जो इफेक्ट आपको मिलेगा बॉडी के अंदर उसको हम लोग बोलेंगे उसका रिस्पॉन्स। तो डोज रिस्पॉन्स हो गया। अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है? आप जितना डोज लोगे उतना आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट? तो वैसे ही एक डोज रिस्पॉन्स कर्व है जो स्टडी किया जाता है फॉर योर ड्रग के एक्शन के। वो एक ग्राफ है जो आपको बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन द डोज एंड द रिस्पॉन्स गिवन। यानी कि इट इज द मैग्नीट्यूड विच वी कैलकुलेट। इट हेल्प्स डिटरमाइनिंग द इफेक्टिव डोज एंड द पोटेंशियल फॉर टॉक्सिसिटी। मतलब कितने रेंज तक योर डोज इज इफेक्टिव एंड आफ्टर व्हाट रेंज, लाइक आफ्टर व्हाट डोसेज, कितने डोसेज के बाद आपका ड्रग टॉक्सिक बन रहा है। दैट इज कैलकुलेटेड इन द डोज ड्रग dose response relationship. This is a very important graph which will give you the relationship between the dose and the drug response. Okay. Then we have drug potency. अब जैसे एफिकेसी हम लोग ने देखा, स्ट्रेंथ, एफिकेसी देखा हम लोग ने, उसका इफेक्ट। तो पोटेंसी एक टर्म आता है जो बोलता है कि द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट। अ ड्रग विथ हाई पोटेंसी gives you lower dose to achieve the desired effect compared to a less potent drug। मतलब क्या कि अमाउंट जितना ड्रग का हम लोग दे रहे हैं टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट। ओके। अब आपका ड्रग जो है वो जितना हाई पोटेंसी का रहेगा, मतलब जितना बहुत ज्यादा पोटेंसी देगा वो इन द लोअर डोज ऑल्सो। ओके। हायर द पोटेंसी, लोअर द डोज रिक्वायर्ड। ओके। lesser the potency, greater the dose required। remember that। सिर्फ एक टर्म याद रखना कि higher the potency, lesser is the dose required। then we have drug selectivity। ड्रग सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने पहले ही बोला था कि we have to select our drugs according to your body, according how your body will respond and according to everything। आप जाकर उठकर नहीं बोल सकते कि मुझे ये ड्रग चाहिए या फिर इस पेशेंट को ये ड्रग देना है। यू हैव टू सेलेक्ट अ ड्रग प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू हिज इज और हर बॉडी और इज और हर डिजीज। Okay, then we have selective drugs and we have non-selective drugs। Selective drugs are the target specific receptors or pathways which can reduce side effects। मतलब आपको पता है कि बाबा इस बंदे को ये डिजीज है, ये ड्रग देने के बाद इसका जो भी डिजीज है या जो भी उसको प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि आपने क्या किया, यू सेलेक्टेड अ पर्टिकुलर ड्रग ताकि उसको उस ड्रग से साइड इफेक्ट्स ना हो। ठीक है। देन वी हैव नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स affect multiple receptors or pathways, potentially leading to broader effects and side effects। अब now you have a patient and you just randomly gave him something, randomly gave him something in the sense you gave him a drug which आपको नहीं पता है कि शायद उसको कोई एलर्जी हो सकता है उससे, या फिर he or she might have side effects from that drug। you just gave him anything, so it was like non-selective, you gave him randomly, so these are under non-selective drugs। then we have agonist and antagonist। agonist and antagonist तो हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं। agonist is the one which activates the receptor, antagonist is the one which inhibits or blocks the action of agonist। okay। देन वी हैव फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। ये हम लोग ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है। फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड्स एडीएमई, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। देन वी हैव फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में हम लोग ने देखा कि हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स टू दी ड्रग्स। Then we have the term called as therapeutic window। Therapeutic window is the range of drug concentration in the blood that provides therapeutic effect without causing toxicity। A narrow therapeutic window means there's a small margin between effective and toxic doses। मतलब क्या कि therapeutic window एक रेंज है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन का जिसमें थेरेपेटिक इफेक्ट मिलेगा विदाउट कॉजिंग टॉक्सिसिटी। लाइक आपने थोड़ा सा ड्रग दिया, वो ड्रग ने आपको रिस्पॉन्ड किया, दैट ड्रग शोड यू द इफेक्ट विदाउट कॉजिंग टॉक्सिसिटी, यानी कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, आपको कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ। तो दैट जो मार्जिन है वो लाइक फॉर द इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी के बीच में जो मार्जिन आएगा दैट इज कॉल्ड एज थेरेपेटिक विंडो। इसलिए उसका नाम दिया गया है विंडो। यानी कि वो आपको इफेक्ट भी देगा या फिर वो आपको टॉक्सिसिटी भी देगा, बोथ और दी ईदर।
Then we have side effects and adverse reactions. Side effects are unintended effects that are generally mild and not necessarily harmful. अब साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है कि आपने एक गोली ले ली, मे बी उस गोली की वजह से आपको और डिजीनेस फील हो रहा है. फीलिंग डिजीनेस इज नॉट हार्मफुल एट ऑल, लाइक यू कैन फील स्लीपी और समथिंग. सो ये थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकता है. Then we have adverse reactions. Adverse reactions यानी कि more serious and harmful effect that requires medical attention. Like आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, like you are feeling nausea, vomiting हो रहा है आपको, जो रुक ही नहीं रहा है. So these are harmful effects which requires medical attention. Okay, then we have drug interactions. As I told you in the last lecture कि drugs interact करते हैं हमारे food के साथ. ड्रग ड्रग इंटरैक्शन होता है, ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस होता है. सो दीज कैन either like interactions जो भी हो रहा है वो either they will enhance the mechanism or the effect, or they will diminish, that is they will prohibit the effect of one or more drugs, whichever the drugs are involved in. Okay. Then we have the adverse drug reactions, ADRs जिसको हम लोग बोलेंगे. Adverse drug reactions जो है, those are which like very very harmful, which requires medical attentions. There we have types of ADRs. First one we have type A, that is augmented. Augmented in the sense कि जो जो ड्रग है वो डोज डिपेंडेंट है, एंड जो उसका साइड इफेक्ट होगा या फिर जो भी उसका एडवर्स इफेक्ट होगा वो वी नो दैट वेरी वेल. ओके, लाइक दोज आर प्रेडिक्टेबल वंस, कि मतलब अगर मैं बोलूँ कि आपने इतना डोज लिया था तो आपको ये साइड इफेक्ट होना ही है. ओके, so these are the predictable ones. For like these reactions are dose dependent and predictable based on the drug's known pharmacological properties. Example, we have hypoglycemia from insulin overdose. मतलब क्या, अगर एक्सेस इंसुलिन आप ले रहे हो तो वो सेल जो है आपकी बॉडी में, दे विल एब्जॉर्ब मच मोर ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया आपकी बॉडी में. ठीक है, फिर जो लिवर है आपका, दैट विल प्रोड्यूस लो लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. अब आपके बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, लाइक योर शुगर हैज बीन reduced टू द अमाउंट नॉर्मल देन द अमाउंट इन नॉर्मल. तो क्या होगा कि आपका बॉडी में डेंजरसली लो लेवल ऑफ ग्लूकोज होगा. इसके वजह से आपको क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया, दैट इज लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी. मतलब क्या कि आपको पता है कि आपने जो इंसुलिन लिया है वो हायर डोज में लिया है. अगर आप हायर डोज में ले रहे हो, इट विल अल्टीमेटली गिव यू लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. ओके, दैट इज अग्यूमेंटेड वन. देन वी हैव बिजार, टाइप बी. These adverse reactions are generally given by the first initials they are named after. That is type B, bizarre reactions. These reactions are not dose dependent and are unpredictable. They often result from allergic reactions or idiosyncratic responses. Example, anaphylaxis to penicillin. अब बिजार में क्या है, अग्यूमेंटेड में हमको पता था कि भाई ये डोज डिपेंडेंट है, ये प्रेडिक्टेबल है. लेकिन बिजार में दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डोज. ओके, एंड इट इज अनप्रेडिक्टेबल. मतलब मैंने तो आपको ड्रग दे दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ड्रग अगर आपके बॉडी में जा रहा है तो ये कौन सा साइड इफेक्ट दिखाएगा, कौन सा एलर्जिक रिएक्शन दिखाएगा, राइट? तो वो बाजार में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, एनाफ्लेक्सिस ड्यू टू पेनिसिलिन. नाउ मेनी अ पीपल आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन. अगर पेनिसिलिन उन्होंने ले लिया, दैट कैन कॉज एनाफ्लेक्सिस, दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस. ओके, और कोई कोई में थोड़ा कम साइड इफेक्ट होगा उसका, लाइक थोड़ा कम एडवर्स रिएक्शन दिखाएगा वो, जैसे कि स्वेलिंग होगा उसका टंग या थ्रोट का, या फिर उसको डिजीनेस फील होगा. Then we have type C, adverse drug reaction, that is chronic reactions. A reaction that occurs as a long-term use. These are often related to drugs accumulation or chronic toxicity. Example, liver damage from acetaminophen use. अब टाइप सी में क्या आता है, तो क्रोनिक. क्रोनिक इटसेल्फ टेल्स दैट वो लॉन्ग टर्म है. आप कोई ड्रग लॉन्ग टर्म ले रहे हो, ओके, तो उसमें क्या होगा कि लाइक वो एक पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा कि इट विल गेट अक्यूमुलेट इन योर बॉडी, इट विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इन योर बॉडी एंड विल कॉज अ क्रॉनिक टॉक्सिसिटी. और वो टॉक्सिसिटी लेवल विल इंक्रीज डे बाय डे.
मतलब सडनली नहीं होगा कि आपने आज ले लिया तो इट विल कॉज क्रोनिक, नहीं, इट इज फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक इट विल टेक इयर्स टू रीच टू द क्रोनिक लेवल। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल लिवर डैमेज है फ्रॉम एसिटामिनोफेन यूज। लाइक एसिटामिनोफेन आप अगर ले रहे हो बहुत ज्यादा टाइम से, तो फिर आपको acute liver failure होगा, which is like liver damage होगा आपका। Okay, then we have type D, that is delayed reactions that appear after a prolonged period of drug use or after the drug has been discontinued। जैसे क्रोनिक हुआ आपका लॉन्ग टर्म यूज के वजह से, वैसे ही डिलेड भी है, लेकिन डिलेड में क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म यूज तो कर रहे हो, लेकिन आपने बीच में ही उसको सडनली स्टॉप टेकिंग और यू डिसकंटिन्यूड दोज ड्रग्स। एग्जाम्पल कार्सिनोजेनेसिस, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, दैट इज बर्थ डिफेक्ट्स फ्रॉम सर्टेन मेडिकेशन टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि अगर आपने सडनली कोई ड्रग लेना बंद कर दिया या फिर उसका प्रोलॉन्ग पीरियड से आप ले रहे हो, तो वो दैट विल कॉज कार्सिनोजेनेसिस, दैट इज कैंसर, फॉर्मेशन ऑफ कैंसर होगा उसमें। और फिर एग्जाम्पल लाइक बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, यानी कि अगर आप SSRI, दैट इज सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ले रहे हो, दैट इज फॉर एग्जाम्पल जोलॉफ्ट है, अगर आप ये ड्रग ले रहे हो फॉर लाइक कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम, सो जो भी बर्थ डिफेक्ट है तो दैट चाइल्ड विल हैव हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस। Then we have type E, that is end of treatment. Reactions that occur when a drug is withdrawn or discontinued, often leading to withdrawal symptoms or rebound effects। यानी कि आपने पूरा ड्रग स्टॉप कर दिया, you suddenly stop the drug or after your instruction from your doctor you stop the drug, तो वो क्या करेगा, वो विड्रॉल सिम्टम दिखाएगा या फिर रिबाउंड इफेक्ट दिखाएगा। यानी कि वो आपने छोड़ दिया तो मैं ये आपको ये इफेक्ट दूंगा, या फिर वो जो आपको इफेक्ट्स थे ऑलरेडी वो वापस से रिबाउंड करेंगे, या फिर वो वापस से आपके सिम्टम्स दिखेंगे। तो इसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। दैट इज वो जो सडनली डिसकंटिन्यूएशन के बाद, लाइक एंड ऑफ ट्रीटमेंट के बाद जो भी होगा, वो एक्टिवेट करेगा आपके SNS को, दैट इज SNS को आपके एक्टिवेट करेगा। ठीक है, फिर आपका एक बार जो SNS एक्टिवेट हो गया, तो वो आपको वापस से वही साइड इफेक्ट्स दिखाएगा, वही लाइक एंजाइटी, हाइपरटेंशन जो भी है आपको, वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिबाउंड ऑफ हाइपरटेंशन आफ्टर स्टॉपिंग एंटी हाइपरटेंसिव्स। Then we have type F, that is failure adverse drug reactions, which occurs when the drug fails to produce the intended therapeutic effect. This can be due to various factors, including drug interactions, resistance, or inappropriate dosing। Example है इसका antibiotic resistance leading to treatment failures, inadequate drug levels due to drug interactions। इसमें क्या होता है कि अगर आपके ड्रग फेल हो गया टू गिव यू द इंटेंडेड थेरेपेटिक इफेक्ट, इट विल लेड टू फैक्टर्स इंक्लूडिंग ड्रग इंटरैक्शंस, रेजिस्टेंस और इनअप्रोप्रिएट डोजिंग। एग्जाम्पल है उसका कि लाइक आपके ड्रग ने आपको इफेक्ट दिया ही नहीं, सो वो क्या हो जाएगा कि उसमें आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, लाइक आप ड्रग ले रहे हो लेकिन आपको वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, वो इनएडिक्वेट ड्रग लेवल है आपका, लाइक ड्रग लेवल बहुत कम है उसके आपके बॉडी में। कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं like allergic reactions, like immune mediated responses to a drug which can range from mild rashes to severe anaphylaxis। allergic reactions हो सकता है आपको किसी ड्रग के वजह से, उसमें आपको या तो माइल्ड रैशेस आएंगे या फिर सीवियर एनाफ्लेक्सिस होगा। then we have management of like how can we manage the ADRS, that is discontinue the offending drug and treat symptoms। सीवियर केसेस में रिक्वायर इमरजेंसी इंटरवेंशन। अब मैनेज करने के लिए वी कैन डिसकंटिन्यू दोज ड्रग्स, लेकिन अगर सीवियर मैंने लाइक आपने डिसकंटिन्यू कर दिया और आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहा है उसको, तो आपको इमरजेंसी इंटरवेंशन, इमरजेंसी मेडिकल ये हेल्प लेनी पड़ेगी। Then we have toxic reactions that is occur when drug levels exceed therapeutic ranges,
आपका ड्रग ने अगर थेरेपेटिक रेंज, यानी कि मैंने जैसे बताया कि थेरेपेटिक विंडोज में दो ये है आपके पास, एक तो जो इफेक्टिव डोज रेजिमेंट्स हैं जो आपको थेरेपेटिक इफेक्ट देंगे, या फिर वो है जो टॉक्सिक इफेक्ट देंगे। तो अगर आपके ड्रग ने आपका थेरेपेटिक रेंज एक्सीड कर दिया है तो वो आपको हार्मफुल इफेक्ट देगा, यानी कि वो इफेक्ट या तो अक्यूट होगा, यानी कि छोटे इफेक्ट्स होंगे, या तो क्रॉनिक इफेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लिवर टॉक्सिसिटी फ्रॉम हाई डोजेस ऑफ एसिटामिनोफेन, या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी फ्रॉम सर्टेन एंटीबायोटिक्स। अगर आप एसिटामिनोफेन ले रहे हैं फ्रॉम लॉन्गर डोज तो वो आपको ड्रग रिएक्शंस देगा, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्शंस देगा वो आपको। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगा, यानी कि आपको किडनी के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे बिकॉज ड्यू टू टेकिंग सर्टेन एंटीबायोटिक्स फॉर लॉन्गर डोज, एंड उसका टॉक्सिक इफेक्ट अगर बढ़ गया तो। Then we have idiosyncratic reactions, that is unpredictable and not related to the drugs. Then often genetically determined. Example, hemolytic anemia due to genetic predisposition of certain drugs. आपको ये रिएक्शंस जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाबा मैंने ये ड्रग ले लिया और मेरे को ये साइड इफेक्ट हो रहा है इसके वजह से। फॉर एग्जाम्पल है हीमोलाइटिक अनेमिया है, आपको अनेमिया हो सकता है क्योंकि आपने जितने भी ड्रग्स पहले से लिए हैं वो अक्यूमुलेट हो गए आपके बॉडी में, और उसके वजह से इट कैन कॉज अनेमिया। देन वी हैव टॉपिक कॉल्ड एज, अभी हम लोग ने देख लिया कि एडीआरएस कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, तो उनको मैनेज कैसे करें, उनको प्रिवेंट कैसे करें, तो उसके लिए वी हैव इंक्लूडेड सर्टेन टर्म्स ओवर हियर। दैट इज मॉनिटरिंग। आप रेगुलर मॉनिटर कर सकते हो ड्रग लेवल्स को, आपके ऑर्गन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं वो। आप क्लिनिकल रिस्पॉन्स दे सकते हो, यानी कि जैसे हम लोग ने ड्रग रिस्पॉन्स कर्व देखा वो आप देख सकते हो पर्टिकुलर पेशेंट का, विच विल हेल्प यू डिटेक्ट एडीआरएस अर्ली। यानी कि अगर आप ये सब इंक्लूड कर रहे हो आपके डेली रेजिमेन में, तो यू कैन कंक्लूड दैट ये एडीआरएस हो सकता है आपको, तो यू कैन स्टॉप और consult your doctors for the reactions. Then we have patient history. Patient history में क्या आएगा, तो taking a detailed patient history include allergies and previous drug reactions can help predict and prevent ADRS. लेकिन जैसे कि आप पेशेंट का हिस्ट्री पूछ सकते हो उससे कि आपको किसी चीज से एलर्जी है क्या, आपको किसी प्रीवियस मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट हुआ था क्या, so that you can avoid giving them those drugs or those medications. Then we have dose adjustment. Adjusting doses based on individual patient characteristics such as age, weight and kidney or liver function. जैसे मैंने बोला कि ड्रग देते वक्त वी हैव टू कंसिडर द पॉपुलेशन, राइट। तो पॉपुलेशन में यू हैव टू सी एवरीथिंग रिगार्डिंग देम, उनका एज, उनका वेट, उनका किडनी का रिलेटेड फैक्टर्स और लिवर फंक्शन एक्सेट्रा, टू गिव देम द ड्रग्स. Then we have drug interaction checks, that is reviewing potential drug and drug food interactions to avoid harmful combinations. Before giving the drugs, you have to see कि अगर मैं ये ड्रग दे रहा हूँ या फिर ये ड्रग मैं दे रही हूँ तो इसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस तो नहीं होगा, या फिर अगर मैं ये ड्रग इस खाने के साथ ले रही हूँ, इस खाने के साथ मैंने ले लिया, खाने के बाद लिया, तो ड्रग फूड का इंटरेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि दोज इंटरेक्शंस आर वेरी हार्मफुल इन नेचर. Okay, so we have to look after that. Then we have education, that is आप patient को educate कर सकते हो about potential side effects and signs of ADRS so they can see help promptly if needed. आप पेशेंट को बता सकते हो कि बाबा आपने अगर ये ड्रग लिया तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, लाइक आपने ये ड्रग लिया तो आपको स्लीपी फील होगा, आपको हेवी फील होगा, यू विल हैव नो एनर्जी टू डू वर्क और समथिंग, सो दैट वो लोग के ड्रग लेने के बाद दे डोंट फील हाइपर कि बाबा ये मुझे क्या हो गया. यू हैव टू एजुकेट देम अबाउट द साइड इफेक्ट्स एंड द एडीआरएस व्हिच दे आर गोइंग टू फेस आफ्टर टेकिंग दैट ड्रग्स. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई इफेक्ट ना ही, साइड इफेक्ट ना ही हो उस ड्रग का. सो यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू एजुकेट देम. ओके. देन रिपोर्टिंग. Reporting ADRS to regulatory bodies helps improve drug safety and contributes to the broader understanding of drug-related risk. अब इसमें क्या होता है कि ठीक है आपने एक पेशेंट को दवाई दी, उस पेशेंट को ये ADRS हुए, ये साइड इफेक्ट्स हुए, लेकिन इट इज योर ड्यूटी दैट यू हैव टू रिपोर्ट टू द रेगुलेटरी बॉडीज दैट कि मेरे पेशेंट को मैंने ये दवाई दी तो उस वजह से उसको ये साइड इफेक्ट्स हुए, सो दैट दे कैन लुक इनटू द
इम्प्रूवमेंट और ड्रग रिलेटेड रिस्क और क्या हो सकता है, दे कैन लुक इनटू इट एंड द रिसर्च टीम कैन वर्क ऑन द ड्रग सेफ्टी. Okay. Then we have factors modifying drug responses. Factors में as we have seen that is age बोला मैंने, बाकी सब कुछ बोला. तो that comes into genetic factors. Genetic factors में क्या आएगा, तो genetic variability आएगा. Genetic differences can influence how individuals metabolize drugs. For example, variations in gene encoding for cytochrome P450 enzymes can lead to differences in drug metabolism and response. आपका genetic, even your genetic plays an important role in the drug response. Okay, अगर आपको genetically कोई problem है, like genes encoding जो भी है हमारा, अगर आपका genetically उसमें इट्स देयर इफेक्ट है, डिफेक्ट है, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी हम लोग को स्टडी करनी पड़ती है. आपके हिस्ट्री के हिसाब से वी हैव टू गिव योर ड्रग्स. Then we have pharmacogenetics, that is the study of how genetic variation affect drug response. For instance, genetic variations in the enzyme TPMP can affect the metabolism of thiopurine drugs used in cancer treatment. आपको फार्माकोजेनेटिक्स जो है वो वी लर्न फार्माकोजेनेटिक्स बिफोर गिविंग यू द ड्रग्स. लाइक जेनेटिक वेरिएशंस होता है हमारे बॉडीज में, आपका जीन्स जो है दैट इज वेरीफाइड. then the metabolism is studied according to your body type. देन आपको ड्रग दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल थियोप्यूरिन ड्रग जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं. वो एक पर्टिकुलर जेनेटिक्स पे हम लोग यूज करते हैं. लाइक वी स्टडी इट ऑन अ पर्टिकुलर जेनेटिक, लाइक ह्यूमंस हो गए, मंकीज हो गए, वी स्टडी ऑन देम फर्स्ट एंड देन वी turn them into the population. Then we have inherited conditions. Inherited conditions in the sense कि genetically हम certain डिजीज हो गया, सर्टेन जो भी लाइक नॉट ओनली डिजीज, लाइक सर्टेन कैरेक्टर्स हो गए, वो हम लोग जेनेटिकली इनहेरिट करते हैं अपने पूर्वजों से, लाइक अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से. दे इनहेरेंटली कम. वी हम नहीं चाहते कि बाबा हमको ये सारे क्वालिटीज हो या जो भी है, दे आर इनडायरेक्टली इनहेरिटेड इनटू आवर जीन्स. तो सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स है सच एज G6PD deficiency can affect drug metabolism and increase the risk of adverse drug reactions. Like ये G6PD जो है that is साइटोक्रोम, उसका डेफिशिएंसी हो सकता है विच इज जेनेटिकली इनहेरिटेड, और उसका ड्रग रिएक्शंस भी हो सकते हैं. देन वी हैव फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इज एज. वी as we discussed in the population parameter that age can also affect the drug response. एज में हमारे पास है इन्फेंट्स है, एल्डरलीज है, प्रेग्नेंट लेडीज है, उनका वेट कॉम्पोजिशन और डोसेज एडजस्टमेंट, वो सब कुछ नेसेसरी है ताकि हम डिफरेंट बॉडी वेट्स और उनके कॉम्पोजिशंस के हिसाब से द ड्रग गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एलिमिनेटेड. सो वी हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली to the to give them the drugs and to get a significant response or significant effect from those drug provided to them. तो वो सब हम लोग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में देखेंगे. देन वी हैव जेंडर. जेंडर के हिसाब से भी हम लोग ड्रग का जो है वो हमको फैक्टर्स रिस्पॉन्स देगा. लाइक जेंडर में क्या होता है, तो हार्मोनल डिफरेंस बिटवीन genders can influence drug metabolism. For example, some drugs may be metabolized faster in men than in women. Like जो भी ड्रग्स है, लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि मेंस में दे आर वेरी मच इफेक्टिव देन इन वुमेन्स. तो दे देयर आर सर्टेन ड्रग्स बिकॉज ह्यूमंस के विमेन्स के अंदर जो हार्मोन्स है वो बहुत स्लो काम करते हैं रादर देन इन द मेंस. सो देन वी हैव लिवर एंड किडनी फंक्शन. Impaired liver or kidney function can alter drug metabolism and excretion, necessitating dose adjustment to avoid toxicity. अगर आपका लिवर एंड किडनी का फंक्शन इज वेरी लो और विच इज इम्पेयर्ड, यानी कि इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो आपका ड्रग जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म अल्टर करेगा, या फिर वो एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम देगा, या फिर आपके ड्रग रिस्पॉन्स में इफेक्ट नहीं करेगा. ओके. तो टू अवॉइड टॉक्सिसिटी, लाइक वो अगर आपका ड्रग जाके वहां पर अक्यूमुलेट हो गया, तो वो अवॉइड करने के लिए वी हैव टू स्टडी अबाउट द लिवर एंड किडनी का फंक्शंस. ओके. देन वी हैव सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइक अगर आपको वेदर, it depends on the weather also, it depends on the atmosphere outside.
देन इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन, आप क्या खाना खा रहे हो, आपको उतना न्यूट्रिएंट मिल रहा है कि नहीं, आपके ड्रग का बराबर से एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल है ग्रेप फ्रूट जूस। ग्रेप फ्रूट का जो जूस है वो इनिबिट करता है सर्टेन एंजाइम्स को और उसका मेटाबॉलिज्म स्टॉप करता है। सो वी हैव टू अवॉइड लाइक सर्टेन ड्रग्स के साथ ग्रेप फ्रूट हम लोग अवॉइड करते हैं देना। Okay, then we have lifestyle factors. Lifestyle factors are very very much important. Like आप कैसे जी रहे हो, आपका lifestyle क्या है, what do you do early in the morning or in the night before sleeping, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, that all comes into factors. It all are considered while giving you a drug. तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स में क्या आता है, तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल। Tobacco smoke and alcohol can induce or inhibit drug metabolism, enzymes altering drug levels and effects. अगर आपको ड्रग दिया गया है, if the drug is given to a normal person who doesn't smokes and doesn't consumes alcohol, and drug is given to a person who smokes and consumes alcohol, so what you will see that the non-smoking person, उसके अंदर जो ड्रग रिस्पॉन्स आएगा हमारा, that will be greater than the drug response and the person who consumes alcohol and smokes. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर एक बंदा स्मोक कर रहा है या फिर अल्कोहल इनटेक कर रहा है तो उसका जो भी इन ड्रग मेटाबॉलिज्म का ये है वो reduce हो जाता है, बिकॉज cells are not that sufficiently working to give you the therapeutic effect. Okay, because cells are already tired due to all that everything. सो तो आपको वो इफेक्ट नहीं देगा, तो आपका लाइफस्टाइल जो है वो भी डिपेंड करता है फॉर गिविंग यू द ड्रग रेस्पॉन्स। देन वी हैव एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, यू आर लाइक वेल बिल्ट एंड वेल एक्सरसाइज्ड मैन, तो वो जो इफेक्ट है आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म का वो इंक्रीज होता है टू अ सर्टेन रेट। ओके, लाइक आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे, यू आर हेल्दी, लेकिन आप लेजी हो, सो आपके लाइक नॉट लेजी यू कैन से, बट लेकिन ड्रग का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा इन दी हेल्दी, इन दी अनहेल्दी पर्सन, लाइक जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता। ठीक है, देन वी हैव पैथोलॉजिकल कंडीशंस। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में क्या है कि अगर आप ऑलरेडी डिजीज हो, ऑलरेडी यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, सो देयर आर कंडीशंस कि आपका ड्रग रिस्पॉन्स नहीं देगा। सो उसमें आता है डिजीज स्टेट्स, दैट इज क्रॉनिक कंडीशंस। एग्जाम्पल आपको डायबिटीज है या फिर हार्ट डिजीज है, तो आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म है जो है वो अल्टर करेगा। फॉर एग्जाम्पल लिवर डिजीज कैन अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड लेड टू हायर ड्रग लेवल्स एंड टॉक्सिसिटी। यानी कि अगर आपको पहले से ही डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, तो जो भी आप ड्रग ले रहे हो तो कोई और ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यू आर टेकिंग सो मेनी ऑफ ड्रग्स, सो दैट जो अभी आप ड्रग ले रहे हो उसका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो हो जाएगा ना, एंड देन इट विल लेड टू टॉक्सिक लेवल्स। Then we have drug induced conditions, that is, some drugs can cause conditions that affect the response to other drugs. For instance, that is, for example, long-term use of corticosteroids can lead to osteoporosis, which may affect the response to other medications. Like कैसे होता है कि आप कोई ड्रग ले रहे हो और वो ड्रग ना आपको रिस्पॉन्स तो दे रहा है, लेकिन वो रिस्पॉन्स ऐसा दे रहा है कि उस रिस्पॉन्स के बदले आपका कुछ और कम होते जा रहा है। यानी कि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने से आपका जो बोन्स है, इट विल बी अंडरगोइंग ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है कि आपके जो बोन्स है वो, उनका जो ये है ना, लाइक उनका जो हार्डनेस है वो कम होते जाएगा, दे विल बिकम ब्रिटल एंड दे विल ब्रेक इनटू, like after a certain period of time they will break, not eventually they will break but cracks आएंगे या कुछ तो होगा, because you are taking corticosteroids for a longer period of time। ठीक है, then we just a minute, corticosteroid जो है ना वो वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, okay, which are typically used to treat arthritis या फिर जो भी डिजीज है, ल्यूपस हो गया, उनको ट्रीट करने के लिए वी टेक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में स्पेसिफिकली कॉर्टिजोन आता है एंड प्रेडनिजोन आता है। देन वी हैव
जो एरिया इन्फ्लेमेटेड है ना, वो एरियाज को इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए भी यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, तो ये क्या हुआ, ड्रग इंड्यूस कंडीशन, कि आप ड्रग तो ले रहे हो लेकिन उस ड्रग की वजह से कोई और कंडीशन आपको देखने के लिए मिलता है। देन वी हैव कंप्लायंस एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कंप्लायंस एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि आप कौन से टाइम में उसको ले रहे हो, उसका आपका एडमिनिस्ट्रेशन का टेक्निक क्या है, वो सब, लाइक डोसेज, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी है। Inconsistent timing or frequency of drug administration can affect drug levels and therapeutic outcomes। यानी कि क्या, आपने एक बार ड्रग लिया, आपने सुबह ड्रग लिया, उसके बाद आपको डोज रेजिमेंट दिया था 3 टाइम्स का, आपने एक ही टाइम लिया, फिर आपने कल छोड़ दिया, दोपहर को आपने नहीं लिया, आपने परसों लिया, दैट इज इनकंसिस्टेंट ना। यू हैव टू टेक योर ड्रग्स टू बी टू गेट योर ड्रग रिस्पॉन्स, टू गेट योर इफेक्टिवनेस टू बी ट्रीटेड। सो आपको ड्रग लेना है इन द गिवन फ्रीक्वेंसी एंड गिवन टाइम, एट अ गिवन एट अ गिवन टाइम इन अ गिवन फ्रीक्वेंसी। ओके, देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, लाइक प्रॉपर टेक्निक इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको गोली दी है तो बट ऑब्वियस यू हैव टू टेक इट ओरली, लेकिन अगर आपको इंजेक्शन दिया है तो यू कांट टेक इंजेक्शन ओरली, राइट? यू हैव टू इंजेक्ट इट इनटू योर मसल्स और इन योर स्किन। सो जो एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You have to take your drugs properly according to the techniques and according to the route of administration enhanced or given, told by a doctor or the physician. Then concluding the topic here, that is जनरल फार्माकोलॉजी जो हम लोग ने पढ़ा, उसको कंक्लूड करते हैं। लाइक जनरल फार्माकोलॉजी क्या है, तो इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग इंटरैक्ट्स विद द बॉडी। हम लोग ने देखा फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, उसमें हम लोग ने देखा कि ड्रग कैसे बॉडी पे रिएक्ट करता है या फिर बॉडी आपके ड्रग को कैसे रिएक्शन देती है। तो ये दोनों चीज को मिलाकर पढ़ने के लिए हम लोग बोलते हैं इट इज जनरल फार्माकोलॉजी। तो द ड्रग, हाउ द ड्रग इंटरैक्ट्स विद बॉडी, हाउ दे आर प्रोसेस्ड एंड हाउ दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स, ये हम लोग ने सब पढ़ा। उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, वो कैसे इफेक्ट देगा, उसका थेरेपेटिक विंडो क्या है, वो सब हम लोग ने पढ़ा। इट इंटीग्रेट्स नॉलेज ऑफ ड्रग प्रॉपर्टीज, उसका एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स, थेरेपेटिक यूजेस, safety considerations and the influence of genetics on drug responses. These understandings is crucial for the effective and safe use of medications in clinical practice। अगर आपको ये सारे टर्म्स, यानी कि जो भी हम लोग ने देखा, एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स हो गए, उसके थेरेपेटिक सेफ्टी हो गया, फिर उसका इन्फ्लुएंस हो गया जेनेटिक्स पे, ये सब अगर आपको नहीं पता, सो यू कांट प्रिस्क्राइब अ ड्रग टू समवन। ओके, बिकॉज यू हैव to be particular, you have to be peculiar about giving a drug to someone, because giving a drug to someone can cause like many adverse reactions, या फिर it can be life threatening at some point. So you have to consider the general pharmacology about the drug to prescribe a medication or to prescribe a drug to someone. Okay. Then what is the scope of general pharmacology? General pharmacology encompasses a wide range of topics related to the study of drugs and their effects on the body. The scope of general pharmacology is broad and includes understanding the fundamental principles of how drug works, how they are absorbed, distributed, metabolized, and excreted, and their effects on the body. It also covers drug interactions, adverse reactions, development, regulation, and the role of genetics and drug response. Each of these areas is critical for the effective and safe use of medications in clinical practice. Each of these areas, whichever I have mentioned in above, ये सारे areas, they are critical. They are like, मतलब आपको ये सारे areas पढ़ना ही है. You can't skip any area. You have to have every single knowledge about these particular areas, because अगर आपको ये सारा knowledge है, then and then only you can proceed with the pharmacology, because ये सारे areas जो भी हम लोग ने cover किए in the general pharmacology, these are the basic terms. ये सब कुछ basic है to learn the pharmacology of a particular drug or a particular category or particular group of drugs.
ये सब आपको आना ही है. यू हैव टू नो एवरी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस जनरल फार्माकोलॉजी टू प्रोसीड विद द proper subject of pharmacology. Okay. Now, concluding the topic here, I'll just revise whatever we have learned in these slides. We went through basic principles. Basic principles ke baad, I told you all the terms whichever I have used. Like we went with the receptor, जो कि एक protein molecule है. We went through binding site, यानी कि आपका receptor जहाँ पर जाके bind करेगा. We learned about half life, that is time taken for a drug to minimize or to come to its half of life. And then we went to therapeutic window. Therapeutic window में हम लोग ने देखा कि the range of drug required to produce a desired effect is a therapeutic window. Then we went through bioavailability. Bioavailability में हम लोग ने देखा that proportion of a drug which requires in a systemic circulation. Okay, then we went through terms like agonist and antagonist. Agonist यानी कि which enhances and antagonist यानी कि which blocks. Then we went through adverse drug reactions. Adverse drug reactions में हम लोग ने type of reactions देखे. Type of reactions में हम लोग ने A, B, C, D, E, F तक देखा. Then we went through certain examples of that. Then हम लोग ने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में हम लोग ने जेनेटिक्स के बारे में देखा. जेनेटिक्स में हम लोग ने देखा कि कैसे आपके जीन्स में अगर इनहेरिटेड है तो वो कैसे इफेक्ट देगा, कैसे साइड इफेक्ट देगा. देन वी वेंट थ्रू दी एज रिलेटेड, यानी कि पॉपुलेशंस के बारे में हम लोग ने देखा. एज हो गया, उसमें इन्फेंट्स आ गए एंड प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह आ गए, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा. देन वी लर्न अबाउट द एनवायरमेंटल, जो भी है एनवायरमेंटल में आपका लाइफस्टाइल जो है वो हम लोग ने पढ़ा. देन वी लर्न अबाउट डोसेज टाइमिंग्स एंड टेक्निक्स देखा हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन का. देन वी लर्न अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशन. फिर एट द एंड वी कंक्लूडेड द टॉपिक विद द स्कोप ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी. द फर्दर टॉपिक्स विल कंटिन्यू. थैंक यू.